रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि जनवरी में सोने का इंपोर्ट भारत में तकरीबन 3 साल के निचले स्तर पर चला गया है। 32 महीने के निचले स्तर पर सोने का जो आयात है वो चला गया है और हमने जनवरी में ऑलमोस्ट 76% की गिरावट इसमें सालाना आधार पर बनती हुई देखी है, जो कि 11 टन तक पहुंच गई है। गोल्ड में आज एक बड़ा इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के रीजनल सीईओ श्री सोमसुंदरम पीआर जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। मिस्टर सुंदरम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो वैसे तो मैं आपके डिमांड ट्रेंड और आपकी रिपोर्ट्स के साथ बात करना चाह रही थी, लेकिन शुरुआत इसी के साथ करते हैं। ये जो गोल्ड इंपोर्ट्स गिरते हुए दिखे हैं, कुछ समय पहले तक तो यही रिपोर्ट थी कि अब भारत में डिमांड निकल कर आ रही है, डीलर्स ने फिर से खरीदारी बजट के बाद शुरू कर दी है। और तो क्या ये बजट की वजह से इस तरह का फॉल देखने को मिला है या ये कुछ और ट्रेंड है? No, it is nothing to do with the budget. Okay. Generally, that the demand is, while the demand actually, it's not so much on the demand side, it's also to do with the fact that recycling has increased. Okay. What we have seen in Q4 is people are recycling more, because of which the imports are down, and the demand itself is also a little soft because prices have reached 60,000 rupees. Mm-hmm. So generally, when price rises sharply in the short term, we see consumers will wait. That is exactly what is happening. There is no structural change in demand. ये जो शादियों का सीजन शुरू हुआ है, क्या इस बार डिमांड ठंडी होती हुई दिखाई दे रही? क्योंकि 2022 की जो आपकी रिपोर्ट थी उसके अनुसार सोने की डिमांड 11 साल की ऊंचाई पर हमने पहुंचते हुए देखी और सबसे बड़ा योगदान यहां पर रिटेल खरीदारों का या निवेश का नहीं था, सेंट्रल बैंकों का था, जिनकी तरफ से रिकॉर्ड खरीद देखने को मिली। तो साल 2023 सर अब कैसा दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में जो दो बड़े कंज्यूमर्स हैं भारत चीन, उनकी डिमांड आएगी और भारत में ट्रेंड कैसा दिख रहा है? Well, Bharat you will always see about 800 tons. Okay. Even last year, if you see till September, we had bought only 500 tons. Achha. In December quarter, we bought 274 tons. So it became 774 tons. But if you really look at 2021, we bought the highest quantity in December quarter, which is 345 tons. Fourth quarter has been very good. We believe that generally the second half in India will be good because of monsoons and harvests and how monsoons perform. Everything generally rests largely on the second half. Also, first half you will see closer to Akshaya Tritiya, you will see that the demand comes back. Currently, consumers will wait and watch because 60,000 is a very sharp price. They want to know whether it is sustainable or it is going to come down. So they will wait and watch and then come into the market. समझना चाह रही थी, आपने कहा कि यहाँ पर 2021 में या पिछले साल भी हमने 775 टन 800 टन के आसपास की खरीद देखी। मुझे बताइए सर, जो टिपिकल कोरिलेशन हम देखते हैं, जैसे जो पिछला साल था वो बहुत ही क्लासिक केस था जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन उभर के आया, सोना चढ़ा जरूर लेकिन वो तेजी नहीं देखने को मिली जो हम आमतौर पर एक्सपेक्ट करते हैं जब जियोपॉलिटिकल टेंशन आता है। उसके बजाय डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा और पैसा वहां पर हमने पार्क होता हुआ देखा। इस साल भले ही वो अभी वॉर खत्म ना हुआ हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली स्थिति अब नहीं है, पैंडेमिक की स्थिति भी नहीं है, कोई टेंशन वाली स्थिति नहीं है। इस साल सोने में निवेश कैसा दिख रहा है आपको? It's a very good question. You see, in India, while in the very short term, all these concerns, anxieties drive a demand, largely annual demand is driven by economic growth. The higher the growth, higher the demand. Because higher the growth means you have more savings and part of the savings keep flowing into gold. It is, you may see one quarter rise because of certain geopolitical issues, etc. But India generally, the influence of economic growth is higher on gold demand than any global anxieties, because our country is largely, well governed, and you are looking forward to growth and more savings. So savings drive demand in India more than global anxieties. Therefore, with our economic growth being good, we believe that gold demand will continue to be around 800 to 850 tons. Okay.
सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हमारा जो देश है वो काफी प्राइस सेंसिटिव है, 60,000 का लेवल हम ऑलरेडी करीब से देख चुके हैं, रिकॉर्ड हाई लेवल्स हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप प्राइस फ्रंट पे आउटलुक पे बात नहीं करेंगे, तो मैं वो सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन हमने जितने एक्सपर्ट से बात की वो मान के चल रहे हैं कि इस साल सोने का साल है, इट्स अ ईयर ऑफ गोल्ड, और यहाँ पर कीमतें 2000 और $2100 की बात हो रही है, घरेलू बाजार में भी बढ़ेंगी। तो क्या माना जाए कि इस कारण से सोने में ज्यादा खरीद आएगी, गिवन द फैक्ट कि अब लोग मान के चल रहे हैं कि यहां से स्ट्रेंथ दिखेगी? क्या डिमांड की साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव बदलता हुआ दिख रहा है फिर? See, if the prices keep rising, people like it, so they will come into the market. It is when it rises and then it holds within a certain range, people are a little worried. Will it come down? Can I buy more at the lower end? So if, as the experts say, if the prices keep moving up from 60, for instance, we see 62, 63, 64 kind of stuff, for whatever reason, global anxieties or anything, I think people will come back to buy more gold. तो एक तरह से सोने की कीमतों में जो तेजी आएगी या सोना जितना महंगा होगा उसमें निवेश और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ट्रेडिशनली भारत तो वैसे भी शादी त्योहार के सीजन में खरीदता ही है, यहाँ पर निवेश की डिमांड भी बढ़ेगी। इज दैट राइट सर? क्या मेरा ये समझना सही होगा कि निवेश की डिमांड भी? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस दिन हमारे साथ पूरी डिटेल्स और गोइंग फॉरवर्ड डिमांड आउटलुक दर्शकों के साथ बांटने